Good morning, everyone. My name is Naveen, your English spoken and grammar tutor. Today, we are going to talk to you about this, that, these, and those. We are going to talk between the differences of this and that, basically, and we will later on we will see their sentences also. Basically, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि where do we use this and that? There are several uses of using this and that, like when we are just talking about this. I believe this is this means यह, and that means वह. Before proceeding, I will have to have a blank screen there. We will do it in our blank screen. Yeah, let's start. This and that, this and that, and their sentences also. Basically, what is the uses of this and that? दोनों का मतलब होता है यह और वह. But where do we use this and where do we use that? That means यह and वह. With pointing somewhere. And यह no point. This is the first difference between this and that. When the object is nearer to us, we use this, like this pen, this marker, this table, this book, this phone, this water bottle. When we are pointing somewhere which the object is really far from us, we use that, like that building, that sun, that mountains. We are moving somewhere, we are just roaming somewhere, and we see that we have seen a mountains around us. The mountain and us, the difference between the mountain and us is really very far. We can't reach there instantly. Okay, so we can say that this is not a mountain. We can say that is a mountain. Like the same, when we are pointing somewhere, any object, if we are pointing like that is a mountain. तो बेसिकली ये जो दो डिफरेंसेस हैं ये यूज किए जाते हैं. देखिए, देयर इज अ नो फिक्स्ड रूल बिटवीन यूजिंग दिस एंड दैट, बट आई एम just giving you an idea between this and that. This is used when referring to the object or a person to be pointed. This is also indicates that the object or person is near us. When we are pointing any object or any person could be anyone. Like person can be a male or female, or person can be a singular or plural. Person can be a human, and person can be an animal also. Okay, but it should be indicate मतलब दर्शाना. Indicate means दर्शाना an object or person near us. ये हमें ये दर्शाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारे बहुत पास है. ओके, बेसिकली जैसे अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो मैं यूज करूंगा दिस इज अ marker. Okay, because I am just pointing a marker. This is a marker, this is a pointer pen. Okay, and it is near to me. ये मेरे पास में है इसलिए. And the second, that. Now let's come to that. Later we will talk about these and those. First we will complete our this and that. After that we will go here. That is using that we can understand का मतलब मैं I'm just taking some word from here. Understand means समझना. Understand means समझना. That the person or object का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज we want to indicate is both singular or pointed out to us in the distance place. Distant का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में कोई दूरी हो. ठीक है. Any object which is just not nearer to us, it is just keeping a distance between an object and a person. We will use that there. Okay. Now we will come these. Basically this and that we use for singular things, singular objects.
like this pen, this table, this bag, this person, this animal, this dog, this camel, this sun. But that is also used for singulars, like that pencil, that camera, that fan, that mountain, that river, like that. But what if we talk about these and those? These are used when the objects and people we want to point out are plural. These यूज किया जाता है जबकि ऑब्जेक्ट्स जो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो प्लूरल में है. प्लूरल मीन्स वी नो दैट प्लूरल इज बहुवचन. जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुवचन में है. और सिंगुलर वी ऑलरेडी नो दैट सिंगुलर मीन्स एक वचन. The things we are talking about are in singular form. Singular means ek vachan. Like these are markers, these are pointer pens, these are bags, these are kids. Okay, and it should be plural and it should be not pointed. We also use these to indicate that this object or people, ये object और ये people nearby और पास में है. Nearby, nearby means पास में. Nearby means पास में. और प्लूरल में है, बहुवचन में है. ठीक है. तो बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज वी यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियरर टू अस. वी आर नॉट हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अस. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो भी ऑब्जेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो प्लूरल में होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए. ओके. नाउ कम टू दोज. दोज आर लाइक द सेम एज, दोज आर लाइक सेम एज these, but when we are talking about these तो यहां पर आएगा ये, और when we are talking about those तो वहां पर आएगा वे. ठीक है. those are used to indicate distant object. distant objects कौन से होते हैं और people कौन से होते हैं, and we can use those when these distant people and objects are in the plural state. जब कौन सी स्टेट में है, स्टेट का मतलब क्या होता है, दशा. वो कौन सी दशा में है, वो प्लूरल में है, बहुवचन में है. Okay, when we are having anything which are like they are like just like these, but they are having a good distance between us, like they are just having the distance but they are farther from us, so we can use those for those objects which are दूर, वो जो हमसे दूर है. Okay, now let's come to the points. This notebook should be yours because it says your name is on it. यहां पर इट है, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, इट. ये नोटबुक शुड बी होनी चाहिए आपकी. योर्स का मतलब होता है आपका. ये नोटबुक होनी चाहिए आपकी. बिकॉज क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये नोटबुक होनी चाहिए आपकी, बिकॉज इट सेज योर नेम ऑन इट. ये अपना ये कह रही है कि इसके ऊपर आपका नाम है. दिस बुक notebook should be yours because it says that your name on it, क्योंकि इसके ऊपर आपका नाम है. नेक्स्ट है, what kind of book is this? Was very gripping. gripping का मतलब क्या होता है, जो पकड़ने लायक हो, जिसके ऊपर ग्रिप हो. ओके, दिस इज अ वर्ड ग्रिप. और ग्रिपिंग का मतलब क्या होता है, जो जकड़ने लायक हो, जकड़ने लायक. ठीक है. तो ये कह रहा है कि कैसी बुक है ये, जिसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है. लाइक वी हैव द कॉपी हियर. हमारे पास यहाँ पर एक कॉपी है. ये स्लिपरी है. स्लिपरी मीन्स फिसलने लायक. ओके. और ग्रिपिंग मीन्स जिसको हम जकड़ सकते हैं, जिसको हम टाइट पकड़ सकते हैं. नाउ कम टू दैट सेंटेंसेस. इज दैट किड लुकिंग एट मी? क्या वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है? लुक का मतलब होता है देखना. हम जानते हैं कि लुक का मतलब होता है देखना. इज दैट किड लुकिंग एट मी? क्या वह बच्चा मेरी तरफ देख रहा है? कैन यू लुक एट द फोन? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. कैन यू हैव लुक एट? लुक एट मतलब क्या, आप ध्यान रखना. लुक एट यहां पर हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, और लुक एट का मतलब होता है ध्यान रखना. लुक एट इज अ फ्रेजल वर्ब एंड वी आर जस्ट सेइंग दैट लुक एट, जस्ट कीप लुक एट माय मोबाइल फोन. कैन यू लुक एट द फोन? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. क्या आप मेरे फोन का ध्यान रख सकते हैं? मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए. नाउ कम टू दीज सेंटेंसेस. आर दीज योर क्लोथ्स? Okay, now before proceeding I want to tell you that what is the difference between cloth and clothes. They are homonyms. Homonyms, those words which sounds different, sound same, but the meaning of those sentences are different here.
क्लोथ का मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, बिना सिला कपड़ा, ओके। और क्लोथ का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा। ओके, आई होप यू, आपको समझ आ रहा होगा, शायद दिख रहा होगा। नाउ दीज ग्लासेस शुड बी योर्स एंड द अदर शुड बी माइन। ग्लासेस का मतलब क्या होता है? ग्लास का मतलब होता है कांच, ओके। एंड ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। ग्लास का मतलब होता है कांच और ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। I hope you are understanding what I'm just telling you. Now come to those sentences. Are those friends your friends? क्या वो दोस्त आपके दोस्त हैं? Those are not smarter than you. What is smarter? I'm telling you a different thing here. This is degree. Smarter जो ज्यादा स्मार्ट है, थोड़े ज्यादा स्मार्ट, और स्मार्टेस्ट। व्हाट इज स्मार्टेस्ट? स्मार्टेस्ट मतलब सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा चतुर, ओके। थोड़ा ज्यादा, कंपेरेटिवली। दोज आर नॉट स्मार्टर देन यू, ये आपसे ज्यादा स्मार्टर नहीं है। चलो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग दिस एंड दैट के। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दैट वाज ग्रिपिंग? डिड यू ब्रेक दिस प्लेट? क्या आपने ये प्लेट तोड़ी है? डिड यू प्लेट दिस प्लेट? अच्छा, ये किस तरह का सेंटेंस है जो अभी हमारे सामने आया है? ये अभी हमारे पास आया है सिंपल पास्ट, ये भी हमारे पास आया सिंपल पास्ट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज ईमेल मी इफ एनीथिंग हैपेंस। अगर कुछ होता है, हैपन का मतलब होता है होना, हैपन का मतलब होता है होना, ओके। अगर कुछ होता है तो आप मुझे प्लीज इंफॉर्म कीजिए। यू कैन स्टिल ड्रिंक दिस टी हॉट। स्टिल का मतलब होता है तक, अभी भी, अभी भी, अभी तक या अभी भी। आप ये चाय अभी भी पी सकते हैं क्योंकि अभी भी क्या है, ये हॉट है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट, यूजिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन और द ऑब्जेक्ट वी वांट टू इंडिकेट इज बोथ सिंगुलर एंड पॉइंटेड आउट अस इन द डिस्टेंट प्लेसेस। ये हमें पॉइंट कर रहा है डिस्टेंस प्लेसेस के ऊपर और अभी भी पर्सन ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहा है। इज दैट किड लुकिंग एट मी? क्या वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है? अगर मैं इसी सेंटेंस में दिस लगा दूंगा, क्या यह लड़का मेरी तरफ देख रहा है? इज दैट किड लुकिंग एट मी? क्या वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है? कैन यू लुक एट दैट फोन? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। सेम सेंटेंसेस जो हमने अभी तक किया था यहां पर कि क्या आप मेरे फोन की देखभाल करेंगे? मैं अभी आ रहा हूं। दैट पोस्ट लुक्स लाइक योर्स। आई एम श्योर यू सेंड दिस लेटर टू मी। सॉरी, दिस पोस्ट लुक्स लाइक योर्स। ये पोस्ट आपकी जैसी लग रही है। आई एम श्योर ये सेंड आपने ही की है मुझे, ठीक है। लेट मी कम, आई विल गो लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज एंड दोज। प्लीज रिमूव दीज। इन को यहां से हटाइए, इनको या इन्हें यहां से हटाइए। एवरीवेयर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे सामने आया अभी, स्कैटर्ड। स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, एवरीथिंग इज स्कैटर्ड। एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दोज आर नॉट स्मार्टर, सॉरी, These are the most beautiful tables I have ever seen in my life. ये अभी तक की, मेरी अभी तक की। I have ever, ever का मतलब होता है अभी तक, हमेशा। Seen का मतलब होता है देखना। See, saw, seen। See फर्स्ट फॉर्म है, saw सेकंड फॉर्म है और seen थर्ड फॉर्म है। ये वो ब्यूटीफुल टेबल है जो मैंने आज तक अभी तक कभी देखी नहीं है, अभी तक देखी है। These weather are very गुड फॉर मी। देखिए यहां पर एक हमारे पास होमोनियम आया है, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। वेदर और WHEATHER, वेदर। वेदर का मतलब होता है यदि,
और वेदर का मतलब होता है मौसम। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड फॉर मी दीज वेदर, ये वेदर मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दोज मस्ट बी योर बिलोंगिंग्स, कैन यू बाय इट, ये बिलोंगिंग्स आपके बहुत ही, बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, आपसे जो बिलोंग कर रहे हैं सामान। दोज आर नॉट स्मार्टर देन योर, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। मैंने भी आपको बताया था स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ठीक है, तो वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। थर्ड, दोज आर योर्स नॉट यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ये आपके हैं, वो आपके हैं। वो की जगह अगर हम यहां पर दीज लिखते तो वी कैन से, हम कह सकते थे कि ये आपके हैं। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं राइटिंग। डू यू सी दोज कमिंग, क्या आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं? नाउ, so these are the differences I have told you between this and that. I want to repeat you again what is the basic difference between this and that. Just let you recall or let you remember that what is the basic difference between this and that. This particularly we use for any object which is nearer to us and which is singular in quantity. Like I have a marker here, I have a board here. This is my board, this is our board. ये मेरे पास है, अभी डिस्टेंस नहीं है और ये मेरे बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं इसको कहूंगा this is. But if I am talking about those students, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो मुझसे दूर है, तो मैं यूज करूंगा that is a student, that is a table which is far from me, जो मुझसे दूर है, और जो कि सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस कहां पर आएगा? जब हम लोग बात करेंगे दीज एंड दोज की। दिस मेरे पास है, सिंगुलर है। दीज मेरे पास है, नियर है, बट इट इज क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज प्लूरल। नाउ नेक्स्ट, if I am talking about that, that is a singular object which is far from me. Okay, a object is anywhere is that, but it should be far from me. And those are the sentences which are plural in quantity. Okay, they are plural in quantity, but they should be far from our reach. Okay, so this is the basic difference between this, that, these and those, and the most we have just discussed about the sentences on this and that right now. Later on these and those we will discuss in our next video. Thank you everyone for watching my videos. Thank you, welcome to SA Academy. Just be with us. Thank you very much.